The dark side of Bollywood has been unmasked. Its star actor Deepika Padukone's name now being dragged into one of the most high-profile drug nexus cases. We Ask talent manager Jaya Saha was part of a WhatsApp group with Deepika Padukone and another top actor with codename K. In a WhatsApp chat on the 28th of October at 10:04, Deepika asked K, and I quote, "Mal, you have?" To which K responded in a minute at 10:05 and said, "I have at home, I'm in Bandra, I can ask someone if you want." 2 minutes later, Deepika replies saying, "Yes, please." To which K says, and I quote, "Amit had, he's carrying it." 4 minutes later, Deepika tells K, "Hashna, not weed." That's not it. More screenshots are out. More names have emerged. You heard about Mal, hash and weed. Now watch how they discussed MD and CBD oil. In an explosive drug chat that has been out, Jaya Saha, who is currently under the NCB scanner, told a star kid who's codenamed S, "Hello, I'm sending across the CBD oil with final today." To which S responds, "Hey, thank you." In another chat, an actor with codename N tells Jaya, "You promised me you will get me some nice MD in Mumbai and we will party together. When I come next, I truly need a break." To which Jaya Saha replies saying, "You are making me into a peddler. However, your wish is my command." As evidence continues to mount, Deepika sits on a time bomb. With her proximity with Jaya Saha now being under the scanner, remember, Jaya Saha and Deepika Padukone share a great equation, being spotted with manager Karishma Prakash at her wedding. While NCB has summoned Jaya Saha for questioning along with Sushant's ex-manager Shruti Modi, it has also summoned Deepika's talent manager Karishma Prakash for interrogation. The big question remains, will the NCB summon Deepika Padukone next? Bureau Report, Republic TV. Alisha, my colleague, tracking all those updates for us, joining us live on the broadcast. A very good morning to you, Alisha. Looks like it's going to be an action-packed day as far as the NCB office in Mumbai is concerned already. Karishma, Deepika Padukone's manager, who will be appearing before the agency. But in the latest update coming in, Quant's CEO Dhruv has also been summoned by the NCB today itself. Also being told a producer is under scanner. Could be questioned, could be summoned by the NCB. इस पे और जानकारी दीजिए, Alisha. देखिए, बिल्कुल ड्रग कार्टेल को लेकर जो नेक्सस बॉलीवुड में चल रहे हैं उसको देखते हुए फुल एक्शन में बिल्कुल दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए खुद जया साहा, जिनको कल करीबन 4.5 घंटे तक की पूछताछ की गई थी, उसके बाद उनको फिर से आज के लिए समन किया गया था। वहीं पर श्रुति मोदी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और इम्पोर्टेंटली करिश्मा प्रकाश, जो कि नया नाम सामने आ रहा है, जो कि कौन में काम करती है और वही दीपिका पादुकोण को मैनेज करती है। वो मैनेजर है दीपिका पादुकोण की। तो अब जो चैट रिपब्लिक टीवी की ओर से एक्सेस की गई थी और जो खुलासे किए गए थे, अब उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं खुद एनसीबी की ओर से जो शिकंजे जो कसते जा रहे हैं लगातार इन पर नजर रखी जा रही, क्योंकि जया साहा जो कि खुद कौन कंपनी में काम करती है, वही करिश्मा प्रकाश वो भी कौन कंपनी में काम करती है। और आज जो एक नया समन खुद एनसीबी की ओर से भेजा गया, जहां पर कौन के सीईओ ध्रुव को बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो लगातार कनेक्शंस और इम्पोर्टेंटली जो ड्रग्स को लेकर जो चार्ट सामने आ रहे हैं, वो सभी लोग कौन, जो कि एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि सेलिब्रिटीज के मैनेजर को सेलिब्रिटी पीआर हैंडल करते हैं, उन सभी लोग जो है वो कौन कंपनी से जुड़े, जिसको देखते हुए आज कौन के सीईओ ध्रुव, उनसे पूछताछ की जाएगी। जया साहा, जिससे आज दूसरी बार पूछताछ एनसीबी से की जाएगी, साथ ही श्रुति मोदी और करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ की जाएगी। Alisha, but this is not the first time that this talent management agency is under scanner. Already the agency has been questioned by the Enforcement Directorate in the Sushant Singh Rajput case as well. Do we have a word on what came of that particular round of questioning and how the two could be related? Or this could in fact be a follow-up of the same?
देखिए पहले जो ड्रग्स चार्ट को लेकर जो सामने आ रहे हैं और इन सारे चार्ट को लेकर जो कल खुद सबसे पहले खुलासा रिपब्लिक टीवी की ओर से किया गया था और उससे कहीं ना कहीं ये जरूर पता चला है कि जया शाह जो है वो इस पूरे ड्रग कार्टेल को लेकर एक किंगपिन दिखाई दे रही है, क्योंकि फिर चाहे सप्लाई करने की बात हो या डिलीवरी करने की बात हो, जया शाह हर जगह पर जो है बात करते हुए नजर आ रही है। वो भी बॉलीवुड की ए लिस्ट की जो सेलिब्रिटीज है उनको डिलीवरी देने की बात की जा रही थी जया शाह के ओर से। और जया शाह जो कि खुद कौन कंपनी की में काम करती है और सभी लोगों को कहीं ना कहीं वो हर एक सेलिब्रिटीज को देखते हुए जो मैनेजर होते हैं उनके मैनेजर को लेकर उनका काम सबसे टॉप मोस्ट को किया जाता है, उनसे सारे मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जुड़ी है, जिसको उनसे तो एक तरफा सवाल जरूर किए जाएंगे पर जो खुलासे लगातार सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी लोग फिर चाहे करिश्मा प्रकाश हो, क्योंकि दीपिका पादुकोण के भी नाम सामने आए और खुद दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश है और करिश्मा प्रकाश जो कि कई सालों से कौन के साथ ही काम करती है। और जाहिर सी बात है अब पूरी जो एजेंसीज है एनसीबी के ओर से, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ओर से जो जांच ड्रग कार्टेल को की जा रही है वो अब कौन कंपनी पर कहीं ना कहीं जरूर एक नजर दिखाई देते हुए नजर आ रही, क्योंकि एक तरफा जहां पर जया शाह से पूछताछ की जाएगी, करिश्मा प्रकाश से की जाएगी, वही तीसरी ओर कौन के सीईओ ध्रुव से भी पूछताछ की जाएगी, जिनको आज समन भेजा गया है। All right. Those are the latest details as far as the NCB drug probe is concerned. Karishma, Deepika Padukone's manager, has been summoned by the NCB. Also, Jaya Saha will be appearing once again before the agency. Remember, yesterday she was questioned for a little over 4 hours. Shruti Modi too will be appearing before the probe agency. But most importantly, Quant CEO, both Karishma and Jaya Saha are a part of this particular talent management agency. They're working for this agency. The CEO too has been summoned by the NCB. But Alisha, what's also very important is, as far as the NCB investigations are concerned, they are working closely on two important angles. One, of course, the details that have been revealed by Rhea Chakrabarti, Shovik Chakrabarti, the list of 20-25 celebrities that the NCB has. Also, Manjinder Singh Sirsa's complaint on the 2019 Bollywood drug video. So, two cases that the NCB is looking at, and several names now coming out in the open. Alisha. देखिए बिल्कुल एक टीम शुरुआती से जहां पर एनसीबी ने अपने ड्रग कार्टेल को लेकर जो लगातार जांच की जा रही थी और जैसे ही रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की ओर से कई नाम और इम्पोर्टेंटली सारे जो बॉलीवुड के ए लिस्ट के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम सामने आने के बाद एनसीबी की ओर से एक टीम जो है वो सिर्फ बॉलीवुड में चल रहे ड्रग नेक्सस को लेकर बातचीत जो है उनकी जांच के लिए लगाए गए थे। और अब जहां तक खुद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद एनसीबी की ओर से दी गई थी कि इन सभी मामले को लेकर जो एक समन्स है वो खुद सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा इनको भेजा जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी क्योंकि इनके भी नाम सामने आए हैं। पर अब देखा जा रहा है कि एनसीबी जो कि फुल एक्शन पर दिखाई दे रही है और वहीं पर दीपिका पादुकोण के जो मैनेजर करिश्मा प्रकाश उनको कल समन भेजा गया है। और अब कौन जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो है उनकी ओर से कई लोग सामने आ रहे हैं, जहां पर जया शाह जिनका चार्ट कल सामने आया था दिखाए थे कि जया शाह जो कि पूरे ड्रग कार्टेल को लेकर किंगपिन दिखाई दे रही है। और फिर चाहे जो बान सब्सटेंसेस को लेकर बातचीत की जा रही थी, CBD ऑयल को लेकर या फिर MD को लेकर, सारे डिलीवरीज को लेकर भी बातचीत की जा रही थी। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जया शाह जो कि सबसे बड़ी एक लीड जो है वो अब एनसीबी के हाथ में आई है, जिसमें कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं। पर आज कौन कंपनी की बात करें तो जया शाह खुद एक उसमें काम करती है, वही करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर भी है। All right, Alisha, I'll take in a word with you once again in a few minutes, but quickly taking a word from Reema for now, who's also joining us with some more details. Reema, a lot of developments that we can expect through the course of the day. You have Deepika Padukone's manager who will be questioned by the NCB. Also, Quan Agency CEO Dhruv, who is the employee of both Karishma and Jaya Saha, will also be appearing before the agency.
क्या ये सवाल मेरे से था? जी रीमा। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल अब ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि सारा फोकस अब दीपिका पे आ चुका है। अब सारा अली खान का नाम पीछे, अब श्रद्धा कपूर का नाम पीछे, क्योंकि इनको भी समन किया जाना है। लेकिन मौजूदा वक्त में बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स एंगल में आना और ड्रग्स चैट में आना, ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से और सनसनीखेज इस लिहाज से, क्योंकि बॉलीवुड के और कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। आप सोचिए जरा कि 2019 के जिस पार्टी के वीडियो का हम जिक्र कर रहे थे उसमें भी दीपिका मौजूद थी, और तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दीपिका का नाम आ सकता है। लेकिन अगर दीपिका का नाम ड्रग्स चैट में आया है, ड्रग्स एंगल से एनसीबी इनको समन कर सकती है, तो ये सिलसिला बॉलीवुड नहीं, उड़ता बॉलीवुड में यहीं तक नहीं थमने वाला, बल्कि ऐसे कई चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे, ऐसे कई सेलिब्रिटी, ऐसे कई बड़े सुपरस्टार्स हैं जो कि बेनकाब होंगे। और एनसीबी ने मन बना लिया है, एनसीबी इस तरीके से मन बना चुकी है कि अब कोई भी चेहरा, चाहे वो कितना रसूखदार हो, कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, पहले मैं बार बार इस बात को दोहराती रही हूँ कि सबसे पहला फोकस था एनसीबी की टीम का कि वो ड्रग पैडलर तक पहुंचे। उसमें ड्रग पैडलर से पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ कि श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक कैसे ये चेन पूरा काम कर रहा है। उसके बाद फोकस पूछताछ के बाद, चाहे वो जया मोदी हो, श्रुति मोदी हो या जया शाह हो, इन सब से पूछताछ के बाद सीधे बॉलीवुड में किससे तार जुड़ते हैं? दीपिका पादुकोण जैसी सेलिब्रिटी, जिनके मैनेजर से पूछताछ और उसके बाद कभी भी उनको समन किया जा सकता है। श्रद्धा कपूर और इसके अलावा सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह का नाम हम बार बार अपने दर्शकों तक बता रहे हैं, लेकिन सारा फोकस फिलहाल दीपिका पर आ चुका है। और दीपिका को लेकर बार बार अब अलग अलग तरीके से हम स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, और कल से लेकर आज तक हमने ट्विटर ट्रेंड देखा हो या सोशल मीडिया पे सब यही चर्चा कर रहे हैं कि ये उड़ता बॉलीवुड बन चुका है। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीपिका का नाम आना अपने आप में कई सवालों को लेकर आ चुका है बॉलीवुड को लेकर, कि क्या उड़ता पंजाब बनाने वाले फिल्म निर्माताओं को अपने उड़ता बॉलीवुड की खैर नहीं है, उनको ज़रा भी इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे नशेड़ी गजेड़ी लोग रहते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात की सुध नहीं है। और मैं So what it looks like, Reema, at this point in time is that the questioning of Jaya Saha has become extremely important, is why now she's been being interrogated for a second consecutive day, and several other key players also who will be questioned by the probe agency, including Deepika Padukone's manager Karishma. We'll keep giving out more such details. Thank you, Reema, for joining us.